नमस्ते, वेलकम टू आरोग्य तथ्य। वंस अगेन हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और आज हम आपके पास लेके आए हैं और एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ जानकारी लेके। सो वेलकम टू आरोग्य तथ्य ब्रॉट यू बाय सुकाफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। Today we have got a very important topic, chronic back pain and its management. Pain is considered chronic when it is present for more than 3 months. Back pain can develop anywhere from the neck to the lower spine. Underlying causes of back pain should be treated. And lower back pain also sometimes it is for a long time, and which we call it as chronic lower back pain. So let us understand the causes of chronic back pain and how to care about your back, and what are the treatment options available to take care of your spine health. And today we have invited Dr. Uday Arun Ranade, consultant orthopedic surgeon. Doctor, a warm welcome to our live show. Thank you. Let me introduce Dr. Arun Uday with all of you. He is an orthopedic surgeon in trauma surgery and joint replacement surgery. He is associated with Sukafa Multi-Speciality Hospital. He has done MS in orthopedics and traumatology from St. Petersburg State Pediatric Medical Academy. He has vast experience in trauma surgery and joint replacement surgery. After post-graduation, he has done fellowship on joint replacement surgery from Germany and Russia. He has also done specialization in principles of fracture management in Davos, Switzerland. He was associated with Global Hospital and Research Center, Mount Abu, and made joint replacement programs affordable for the common people. With his special interest in joint replacement surgery and trauma care treatments, he wants to make this treatment beneficial and affordable for the under-resourced communities. Doctor, a warm welcome once again to our live show today. Thank you. आज हम ऐसा एक टॉपिक चूज किया है, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने पूछा है कि सभी बैक पेन से जुड़ी कुछ ना कुछ कारण से पीड़ित है, तो उनके तरफ से हमारे पास कुछ प्रश्न हैं और हम चाहेंगे आप हमें गाइड कीजिए कि इस तरीके की क्रॉनिक बैक पेन को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो, इज इट नॉर्मल टू हैव अ बैक पेन? जो बैक पेन लोगों को अनुभव होती है, ये नॉर्मल है क्या? No, any kind of pain is actually not normal in any kind of any system of the body. कहीं पर भी अगर दर्द हो तो नॉर्मल हेल्दी इंसान में जनरली कोई दर्द होता नहीं है. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल टू हैव बैक पेन. समटाइम्स वी मे एक्सपीरियंस समथिंग दैट वी कॉल एक्सर्शनल पेन. मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लिए, कहीं बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो गया, कुछ परिश्रम ज़्यादा हो गए, तो समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर दिन या रात जैसे थोड़ा सा पेन होता है, बट दैट जनरली गोज ऑफ इन वन डे और टू. सो normally a person should not have any kind of back pain. That is not normal. Right. So we should not consider it that it's okay. No, it should not be taken that way. Right, doctor. Yes. So why does chronic back pain occur usually? क्यों होता है? If you look at the back, there are 3 parts. मतलब अगर आप पूरा बैक को ऐसे आप देखोगे तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं. एक तो बोन का कंपोनेंट होता है, एक होता है मसल्स का कंपोनेंट जो बोन को पीछे से सपोर्ट करते हैं. मसल्स मेनली जो स्पाइन के आजू बाजू के जो मसल्स है, और तीसरा कंपोनेंट होता है नर्व्स का, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो ब्रेन से मेन नर्व जो हमारी आती है, जो पीछे बोन में से निकलती हैं. तो ये 3 कंपोनेंट्स में अगर कोई भी हमारी पैथोलॉजी हो जाए, जैसे बोन में वीकनेस हो गई या कोई इंजरी हो गई, मसल्स में वीकनेस आ गई या मसल्स श्रिंक हो गए, या जिसको हम लोग एट्रोफी बोलते हैं वो, या अगर नर्व कहीं पर पीछे दब रही हो, या तो फिर डिस्क के वजह से दब रही हो, या फिर एजिंग के हिसाब से अगर कैनाल छोटा हो जाए तो उससे दबती हो, तो अगर इन तीनों में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आए तो क्रॉनिक बैक पेन स्टार्ट होता है. तो जनरली हम जब क्रॉनिक बैक पेन की बात करते हैं तो ये नॉर्मली 6 वीक्स से ज़्यादा, 12 वीक्स इनफैक्ट अगर आप देखो लिटरेचर में,
12 वीक्स के ऊपर अगर पेन है तो इसे क्रॉनिक कहते हैं। उसके अंदर मतलब अगर 12 वीक्स से कम है, मतलब वो नॉन स्टॉप रहता है। हाँ, पेन ऑन एंड ऑफ हो सकता है, आता है जाता है, एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कोई भी पेन अगर आपको 12 हफ्तों से ज़्यादा है तो इसे फिर हम क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं। और ये जनरली इन 3 चीज़ों के वजह से होता है। कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, इंडिविजुअल बोन, इंडिविजुअल मसल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल नर्व प्रॉब्लम, ये भी हो सकते हैं। और मोस्टली जैसे हम देखते हैं क्रॉनिक बैक पेन में तो ये इंडिविजुअल नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होता है और हमें सारे फैक्टर्स को ही देखना पड़ता है ट्रीटमेंट के वक्त। तो इसका मतलब इसका जांच करना जरूरी है कि किस लिए हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली। ऑलराइट। सो इज बैक पेन सीरियस, लाइक व्हेन शुड वी कंसल्ट अ डॉक्टर? क्योंकि बहुत सारे बार पेन आते जाते रहते हैं या फिर वो कंटिन्यूअस है, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि ये एग्जॉर्शन के लिए है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपका सलाह क्या होगा? सी बैक पेन के अगर हम संबंधित बात करें तो जनरली कोई भी बैक पेन अगर आपका 6 वीक्स के ऊपर हो तो डेफिनेटली आपको उसे कंसल्ट और देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बैक पेन के साथ कुछ ऐसे सो कॉल्ड रेड फ्लैग्स है। रेड फ्लैग्स मतलब अगर ये सिम्टम बैक पेन के साथ एसोसिएटेड हैं तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसका हमें एटलीस्ट फाइंड आउट करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो ये रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं कि जैसे बैक पेन वाज मोर देन 6 वीक्स। सेकंड पार्ट इज इफ द बैक पेन इज एसोसिएटेड विद वेट लॉस। अगर बैक पेन हो रहा है और वजन घट रहा है तो दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड थर्ड थिंग इज अगर उम्र 18 साल से कम हो या 50 के ऊपर हो, खास तौर पे अगर कोई इंजरी हुई हो, ये चौथा है। स्पेशली एल्डरली पीपल में अगर माइनर ट्रॉमा ऑल्सो कैन कॉज फ्रैक्चर्स, तो एल्डरली में अब हमें बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है। फीवर अगर हो रहा हो साथ में, फीवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ये इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, तो ये साइंस है। अगर उस पर्सन में कोई पास्ट हिस्ट्री है कैंसर की तो और बैक पेन हो रहा है तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसे कोई रेड फ्लैग्स है मतलब जो अगर बैक पेन के साथ एसोसिएटेड है, टिपिकली जैसे नमनेस हो रहा हो, पैर में झंझनाहट जिसको हम कहते हैं, या सुन्न हो गया हो कोई हिस्सा, या बावल और ब्लैडर में डिफ़िकल्टी हो, मतलब जैसे पेशाब करने जाते हैं सेंसेशन आता है बट से नहीं हो पाता या अनजाने में हो जाता है, रिटेंशन भी हो सकता है और इनकॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स है। अगर आपको इस बैक पेन के साथ ये कोई भी एसोसिएटेड है तो आपको डेफिनेटली इसका फॉलो करना चाहिए। जनरली हम पेशेंट्स को कंसल्ट करते हैं, मतलब अभी ये सारे तो पॉइंट्स तो जनरल पॉपुलेशन याद नहीं रख पाते, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर बैक पेन आपका 6 वीक्स के ऊपर हो तो, अगर बैक पेन आपका नीचे रेडिएट हो रहा हो तो मतलब पैरों में जा रहा हो तो ठीक है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मुझे लग रहा है हाँ, कि जैसे कि पैरों में जा, करेक्ट, पैर में नमनेस होना, पैर में झंझनाहट होना, अगर पैरों में कोई वीकनेस महसूस हो रही हो। बट अक्सर होता क्या है कि वीकनेस इतनी सटल होती है और इतनी माइनर होती है कि पेशेंट जनरली वो मतलब देख समझ नहीं पाते कि वो एक्चुअली वीक है। हमारे हाथों में अगर वीकनेस आ जाए तो हम तुरंत ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम एवरीडे हाथों का इतना काम करते हैं और इतनी डेक्सटेरिटी होती है हाथों में कि थोड़ी सी भी अगर वीकनेस हो जाए तो इमीडिएटली फील होता है कि समझ में आता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अनफॉर्चुनेटली पैरों के इसमें उतना फील नहीं होता और थोड़ी सी माइनर जो वीकनेसेस हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन पे पकड़ी जा सकती है और जो पेशेंट खुद भी समझ नहीं पाता कि उनके हो गया है। हाँ, एग्जैक्टली। सो these 3-4 things, radiating pain, back pain longer than some particular duration, 6 weeks time, weakness in numbness, ये सारे हैं तो जाना ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको उसके साथ फीवर है, अगर कोई एसोसिएटेड ट्रॉमा है, या आपको बावल और ब्लैडर में कोई डिसफंक्शन हो रहा हो, मतलब कोई गड़बड़ हो रहा हो, जैसे दैट इज़ एब्सोल्युटली एन इमरजेंसी, यू हैव टू कंसल्ट। मतलब इस पर तो बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली फर्स्ट अवेलेबल डॉक्टर ऑर्थो स्पेशलिस्ट स्पाइन उनको जाके दिखा देना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। Like now, what are the common causes of chronic back pain? As you have already explained that there must be, criteria, bone related or muscle related or nerve related, right? Correct. We have understood rightly. Correct. So now, once again, if we want to summarize for the audience, what are the common causes for chronic back pain? If you look at OPD data as such, almost I would say 50 to 60% of our patients generally come with back pain. Either it is acute or chronic or whichever way, so it is that important. Our studies have shown that point prevalence मतलब at any given point in time
if you see the population and then you see how much people are suffering, so it is almost 48%. 48% is a very high percentage, no? And if you look at over the year, suppose 51% of the population is likely to suffer from back pain in 1 year, and in lifetime that same percentage becomes 65%. So you can imagine back pain is a very क्या बोलते हैं important topic in terms of morbidity. मतलब जो patient को बिस्तर पे लेटा दे या काम करने से रोके, back pain is an important thing. lifestyle hamper Yes, हो yes, जाता है, absolutely. right? I think कुछ दर्शकों ने ऐसे ही बताया कि मुझे इतना पेन है तो मुझे इरिटेशन होता है, काम करने में जाने का मन नहीं करता है. They have isolated themselves. Yes, yes, absolutely. That is one very interesting point actually. That is a point that we see in many patients. These attendant psychological issues associated with back pain, or people who are suffering chronic back pain for years. They have issues with anxiety. They have issues with depression. There are psychological rehabilitation is also required for them. But coming back to our causes, the primary cause that we see in our practice is physical inactivity. Today's maybe not so much in the rural population where people still do a lot of physical labor and physical work in terms of farming and other activities, but general urban and population where we have people sitting for long hours, desk work, yeah. So those people or people who drive and travel long distances. Over here in our hospital setup, I see a lot of these patients who have to drive and travel a lot every day. उनको होता है, तो physical inactivity is one big this thing. Physical inactivity से होता क्या है कि muscles weak हो जाते हैं और muscles shrink होकर atrophy होते हैं, तो उनकी power कम हो जाती है. That is one common cause. Second commonly that we see is aging and genetics. मतलब aging related जो causes होते हैं, उम्र के हिसाब से घिस जाना, spondylitis जिसको बोलते हैं, और जो पीछे joints होते हैं muscles, हड्डियों के, रीढ़ की हड्डियों के, वो joints घिसने लगते हैं. Then they also cause pain. Third thing which we see very common is osteoporosis. Osteoporosis, अगर हड्डियों में कमजोरी आ गई तो बोन्स वीक होकर दब भी जाते हैं, जिसको हम कोलैप्स बोलते हैं, वर्टिब्रल कोलैप्स. सो दीज आर सम वेरी फ्यू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ. मोस्ट कॉमनली वी सी इज फिजिकल इनएक्टिविटी. अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ बैक पेन इज व्हेन पर्सन कीप्स ऑन डूइंग रिपीटेटिव वर्क सेम वे, बेंडिंग एंड वर्किंग. लाइक एनीथिंग लाइक ओवर एक्टिविटी. हाँ जी, होता है. अगर आप देखो कैसा होता है, बैक पेन कैन हैव, वन इज दैट आपकी बैक नॉर्मल है और आप लोड ज़्यादा उठा रहे हो, जो नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब जिसको सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड बोलते हैं. दूसरा होता है कि आपकी बैक कमज़ोर है और आप लोड तो नॉर्मल उठा रहे हो, बट आपके बैक के लिए वो लोड ज़्यादा है. सो बोथ ऑफ दीज, स्पेशली इफ़ यू आर ट्विस्टिंग ऑल द टाइम, बेंडिंग फॉरवर्ड ऑल द टाइम and doing repetitive motions in the same this thing, they cause back pain. And another thing I forgot was posture. If we are not sitting erect, if you don't keep watch on our posture, standing, sitting, whichever way, hunching is very commonly seen. जो especially tall people, they have a habit of hunching, tendency to hunch, and that causes problems. So posture maintenance is extremely critical. So I would, to sum up, I would say probably physical inactivity, posture maintenance, aging, and osteoporosis. These are the more common causes for back pain that I see in my OPD. Like I'm just curious to understand, is there any male-female ratio, like, or it's when you get to the elderly population above 50, not elderly, but let's say coming towards the older age groups, women do tend to predominate. But I feel, I'm not quite aware whether there are any specific studies done in terms of this gender disparity. But osteoporosis is one major problem in elderly and women, primarily postmenopausal women. So उनमें तो मतलब बैक पेन का इशू ज़्यादा ही कॉमन है. एटलीस्ट ओपीडी वाइज अगर broadly speaking, not very scientifically, but broadly speaking, yes, I do tend to. हाँ जी, मैं मतलब ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं बैक पेन के. yes, no doubt. जी, wonderful, doctor. Now, what are the various way of managing chronic back pain? Like, could you elaborate, like any non-surgical procedure, way of managing this situation? Like, any physiotherapy or any activity or anything you suggest, like which is non-surgical, non-invasive, non-surgical.
Non-surgical, we could, yes, of course, we can do physical therapy. That is the mainstay of back pain management. मतलब फिजियोथेरेपी के पास जाकर जो हम एक्सरसाइजेज सीखते हैं वो एक्सरसाइजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. वो एक्सरसाइजेज जनरली इंडिविजुअलाइज होती है हर पेशेंट के हिसाब से. एवरी पेशेंट डज नॉट हैव द सेम प्रॉब्लम. बैक पेन तो एक सिम्टम है, बट उसका अंडरलाइंग कॉज हर एक पेशेंट में अलग अलग होता है. तो उन केसेस में हम फिजियोथेरेपी को भी इंडिविजुअलाइज करते हैं. किसी किसी को पोस्चर रीट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी को मसल एट्रोफी है तो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ती है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी की ज़रूरत है. तो ऐसे अलग अलग इसमें हम यूज़ कर सकते हैं. बट फिजिकल थेरेपी इज़ द मेन दिस थिंग दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट नॉन सर्जिकल वेज में. पर जिसमें आप एम्फेसाइज कर रहे हो कि हर एक का अलग अलग होता है. येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि एक्चुअल वजह क्या है, मतलब बैक पेन की वजह क्या है. अगर वजह समझ में आए तो फिर देन वी कैन work on that. That is one thing. Second thing, as I was talking about the psychological aspect, it is a given, it is proven already that there is something called as साइकोसोमैटिक पेन. साइकोसोमैटिक पेन ऐसा होता है कि अगर कंटिन्यूस पेन अगर हो रहा हो पेशेंट को तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो चेंज होकर मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं, जिसको बाद में फिर देन इट एंड्स इन डिप्रेशन, social withdrawal. Very commonly people don't go out because they don't want to suffer that pain more, and anxiety and depression. This is very common thing. So psychological rehabilitation and maybe help from a psychiatrist also is required in some cases. Second thing is what we could do is alternative therapies. We can do dry needling, acupuncture, definitely proven to help to some extent, but it has to be done by a proper expert. That is important. Fourth, keep a watch on your weight. Maintain your BMI as much as possible. Try not to gain weight because more weight you gain, उतना ही ज़्यादा लोड हड्डियों पे और उतना ही ज़्यादा लोड मसल्स पे. So diet and BMI maintaining, that is also important. So these are some non-surgical way. बाकी सारे experimental techniques है कुछ लेज़र थेरेपी. समझ में आ रही है आप ज़्यादातर इंडिकेशन दे रहे हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में. हाँ, वेरी गुड पॉइंट है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे पोस्चर चेंज करना है हमें या फिर वॉच आउट करना है, क्या खा रहे हैं, कितना. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील इज ना कि a lot of patients don't understand, maybe they don't understand or maybe they are not counseled about it by us, that they don't understand the limitations. When you have chronic back pain, you have to understand now that there is a problem and you need to adapt to that problem and you need to figure out कि हमारे limitations क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं और किस चीज़ को हम अगर स्ट्रेस करें तो ये पेन आता है. जैसे अभी फॉर इंस्टेंस कोई नीचे झुक के काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और उनको लग रहा है कि हाँ 20 मिनट्स के बाद ही पेन आ रहा है, या कोई वेट्स उठाते हैं बहुत ज़्यादा काम पे और उनको समझ में आता है कि 20 किलोज उठाया बस अभी पेन हो गया. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये लिमिट है 20 किलोज. यू हैव टू स्टे बिलो दैट. आप मल्टीपल टाइम्स काम करिए, मतलब जाके आके वैसे, बट एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे ऐसे उठाया वो वाला नहीं. तो ये लिमिटेशन जो है, you have to understand those limitations. Yes, absolutely. Because आप कितना भी फिजियोथेरेपी और कितने भी दवाइयाँ और कुछ भी आप ले लो, बट फाइनली एट द एंड ऑफ इट इफ़ यू कीप स्ट्रेसिंग योर बैक जो विच इज़ नॉट स्ट्रांग, तो वो तो दर्द देगा ही ना, वो तो रिएक्शन होगा ही बॉडी का डेफिनेटली. वी ऑफ कोर्स कैन गिव मसल रिलैक्सेंट, बैक पेन किलर्स एंड ऑल दैट, बट हाँ वो फिर कितना, हाँ एग्जैक्टली. सो वी कांट कीप आस्किंग फॉर मोर देन व्हाट द बैक कैन गिव. सो लिसन टू योर बैक. Very true. And when surgery is needed, like बहुत सारे लोगों को बहुत क्रॉनिक पेन होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने फिजियोथेरेपी किए हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस, मॉडिफिकेशन, वी ट्राइड माय लेवल बेस्ट, बट स्टिल कहीं पे वो क्रॉनिक पेन जो है वो उनके साथ ही है. तो ऐसे किसी को सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, तो उसमें किस तरीके का सर्जरी एक तो चीज़ है कि सबसे पहले तो कॉज जो है दर्द का उसे ढूंढना चाहिए, एंड दैट हैज़ टू बी प्रूवन, अनइक्विवोकली प्रूवन कि ये वजह से ये पेन हो रहा है. दैट इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग इज़ if all non-surgical things have been tried and nothing has worked and then pain continues, so then surgery is indicated. मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे डिस्क की प्रॉब्लम हो या फिर अगर कैनाल छोटा हो गया हो साइज़ में, मतलब इंक्रोचमेंट हो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और वो फ्री करना हो, तो फिर उसके लिए सर्जरीज लगती हैं. स्पेशली व्हेन देयर इज़ वीकनेस स्टार्टिंग और व्हेन देयर इज़ नमनेस विच इज़ कंटिन्यूस,
दीज आर ऑल साइंस की इम्पेंडिंग नर्व कॉम्प्रोमाइज, मतलब बहुत ज़्यादा Nerve नर्व, के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर है। है। हाँ, और जब तक आप उस प्रेशर को हटाते नहीं हो तब तक ना पेन जाएगा, एंड देन इट विल कीप वर्सनिंग, और फिर आगे वीकनेस, लेग्स, फुट ड्रॉप जो होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहले ही चेक कर ले। सो दैट्स वाई। तो अभी मिनिमल जो चेंजेस है मसल वीकनेस जैसे, वो शायद पेशेंट को भी पता नहीं चले, तो उसके लिए फिर एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। तो देन वी कैन से कि भाई आपको ये ऑलरेडी हो गया है, थोड़ा वीकनेस तो दिख ही रहा है, इसका मतलब आप में जो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एमआरआई करो, पता करो क्या है। सो इन दीज काइंड ऑफ सिनारियोज वेयर नर्व इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर आपको ऑलरेडी बावल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो रहे हो, तो दैट इज़ एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि सर्जरी करना है उसमें। बिकॉज एक बार वो प्रॉब्लम हो गया और एक बार वो वीकनेस मसल्स की, या फुट ड्रॉप हो गया, या कोई पैरालिसिस जैसा हो गया पैर में, या फिर ब्लैडर में प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर उससे रिकवर होना बहुत मुश्किल है और बहुत लंबा समय होता है, और रिहेबिलिटेशन भी बहुत लंबा चलता है। इन दैट केस देन इट इज़ बेटर नॉट टू neglect and better to get operated that way. So these are signs, and Because every angle they have given the right indication. हाँ, ये ज़रूरी है। हाँ, हाँ, and it is always better to take two opinions, two spine opinions, and don't take opinion from somebody who does not operate on spine or who does not do that particular thing, because what happens is that you have to go to a person who is capable, who does this, who specialized in this field. So always take two opinions before you go ahead with surgery. If both opinions match, then yes, then you should go ahead for that. बट ऑफकोर्स जैसे जैसे अभी इम्पेंडिंग पैरालिसिस हो, या कोई ऐसे नमनेस बहुत ज़्यादा हो गया और वीकनेस वगैरह आएगा, तो फिर दूसरा ओपिनियन ढूंढते हुए मतलब ज़ाया नहीं करना है। suggested, like MRI will speak about what's happening exactly. Yeah, absolutely wonderful. And that's how you said it's proven that all indications, it's proven that you should go ahead, and MRI is the conclusion or confirmation. MRI gives us an idea, but it is more these physical symptoms that we examine on the patient, and then we take the history. Both correlated have to be done. Yes, and then the decision is taken. Wonderful. Okay, so like now, doctor, can you suggest some tips to those who are already facing chronic back pain? क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास इस तरीके की प्रॉब्लम है उनके फैमिली में या उनके पर्सनल लाइफ में, तो वो जानना चाहेंगे कि अभी इमीडिएटली कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगे those who are suffering with chronic back pain. They already have this. They are already facing this challenge. One thing is, as I said, accept your limitations. That is important to know. It should help them in a decision making process. डिसीजन में, हाँ, मतलब इन जनरल डे टू डे लिविंग में जो चेंजेस करनी चाहिए, आइडियली वन इज़ दैट यू नो योर लिमिटेशंस, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। सेकेंड थिंग इज़ दैट कीप अ वॉच ऑन योर BMI. Obesity will increase problems, so try not to gain weight. If you can't lose weight, ठीक है, but at least try not to gain weight. Do not neglect the physiotherapy part, the physical exercises part. Back exercises, even though back pains can come and go, थोड़े दिन ठीक रहता है, थोड़े दिन आ जाता है, तो हम लोग फिजियोथेरेपी को निगलेक्ट करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ कंपलसरी, वो करना ही है। एंड डे टू डे में बेसिक चीज़ें जो आपको, मतलब जैसे आपको अगर वज़न उठाना है, तो ट्राई नॉट टू बेंड योर बैक, बेंड योर नीज, squat down and then lift without having to bend forward. Okay, that is one thing. Getting out of the car, don't try to put one leg out first. First you turn entirely towards the door. Seated in the car, you turn towards the door, put both your legs out, and then get up. एक साथ दोनों पैर दोनों, हाँ, exactly. So, because what happens is that when you turn and just keep one leg, you are inadvertently twisting the back. अब बैक को ट्विस्ट कर रहे हो तो वो वापस पेन एग्रेवेटर होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, फिर सीटिंग पोजीशन, जैसे हम लोग चेयर पे बैठे हैं, मेक श्योर दैट योर नीज एंड योर हिप्स आर इन द सेम at the same level. And the height of the chair should be such that you should be able to get up from the chair without using arm supports. वैसे मतलब फोल्डेड आर्म्स में ऐसे आप उठ सको, उतनी तो एटलीस्ट हाइट होनी चाहिए। बहुत लो सीटिंग अवॉइड करना है, ज़्यादा वजन वगैरह नहीं उठाना है, मतलब मोर देन 10%, हाँ, झुकना नहीं है। एंड प्राइमरीली बेड मैट्रेस हैज़ टू बी प्रॉपर, तो वो एक एक्चुअली, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बैक, तो पूरा बहुत सारे लोग अपर बैक का भी प्रॉब्लम बताते हैं कि बहुत नेक पेन होता है, वो रेडिएट्स होता है थ्रू आउट द बैक।
Yes. तो ऐसे लोगों के लिए भी आपका क्या Same. Don't sit in. Primarily, the problem with upper back and neck is sitting in single position for a long time. So keep changing your positions. Don't sit and put your neck in one position for too long. At least I normally recommend my patients कि every half an hour get up and do basic stretching exercises जो physiotherapist ने सिखाए हैं. So at least it doesn't become this much. You feel much better after that. So primary thing is that same thing position. And while lying on bed, while sleeping, make sure that you can use a soft pillow. There is no need to not use a pillow. But if you are more lying on the side, then you make sure that the thickness of the pillow is enough so that your neck doesn't fall like this. When you lie on the side, people don't use pillows sometimes, or they use very thin pillows, and then the गर्दन ऐसी गिर जाती है एक साइड में, तो वो नहीं होना चाहिए. So you use a pillow which is of sufficient height that causes this thing. There are a lot of cervical pillows that are available commercially in the market. You could probably use that. Everybody is different. Everybody's neck length is different, so not one size will not fit all. तो as you rightly suggested that जब आप साइड पे सोते हो तो उस गैप को फिल अप करना है, तो वो जो भी कंफर्ट है करेक्ट. नहीं तो गर्दन ऐसी गिर जाती है फिर. एंड डेफिनेटली आई रिकमेंड नॉट टू यूज 2 पिलोज एट वन गो, बिकॉज होता क्या है, रात में यू आर स्लीपिंग, एक पिलो दूसरे पिलो के ऊपर स्लिप हो जाती है और आपकी गर्दन अजीब एंगल में रह जाती है. दैट इज अगेन यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड हैविंग नेक पेन्स, स्टिफनेस एंड नेक पेन. इट इज बिकॉज ऑफ दिस. तो वो नहीं करना चाहिए. तो as far as decision making in terms of surgery and all, तो वो तो वही है, weakness and pain radiating down, and for that you have to yes, right? तो 1 2 3 point that वो तो सर्जन को जाके मिलके ही डिसाइड होगा, डिसीजन होगा. Right. But at any cost we should not neglect, because that's the we always say spine जो है वो सब उठाते हैं, अपना बॉडी का भी वजन उठाते हैं. Even our family also depends on that, because we are the bread earner, you know, sometimes we have to go out earn. Yes. So we should not neglect this. No, we should not. We should not neglect this. Yes. So doctor, now like how can one maintain a healthy spine and avoid back pain issues? आपने बहुत सारे टिप्स ऑलरेडी दिए हैं, फिर भी अगर एम्फेसाइज करना है तो आप कौन सा एम्फेसाइज? तो फिर देन द पॉइंट इज द सेम. वन इज पोस्चर and second is you start doing back exercises. If you have a job which involves sitting in one position, if you have a job which involves traveling a lot, do start back exercises. Go to the physiotherapist even if you don't have pain. दर्द नहीं हो तो भी आप जाइए और एक्सरसाइज सीख लीजिए और वो घर पे करते रहिएगा. स्ट्रेंथनिंग करना है बस. यू डोंट हैव टू गो टू द जिम एंड ऑल दैट फॉर दिस. 10-15 मिनट लगते हैं, बट उतने भी अगर आप करोगे तो यू विल हैव अ हेल्दी पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. एब्सोल्युटली. लाइक हाउ people do pranayam and other yoga exercises, add this also to it. And there is no problem for healthy people who don't have any other issue, just as a matter of precaution. Second thing is maintain your bone health. That is very important. Osteoporosis वगैरह है तो especially postmenopausal women, they have to take care of their bone health once the menopause starts. तो कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसीज अगर है तो उसे नॉर्मल करना है, उसे रिकवर मतलब जो भी है रेगुलर जरूरी है. यस एब्सोल्युटली ये करना है. एंड इन जनरल वही पोस्चर के साथ साथ BMI नहीं बढ़ाओ, आइडियली वजन नहीं बढ़ाओ. आइडियली वी आस्क पेशेंट्स नॉट टू हैव ट्रांस फैट्स मोर. वो थोड़ा कम करना है, बिकॉज फॉर सम रीजन ट्रांस फैट्स टेंड्स टू एग्रेवेट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन द बॉडी. तो वो थोड़ा सा कम रखना है. ट्रांस फैट्स मतलब वो जो अपने चिप्स विप्स में आते हैं ना जो फैट्स, these are saturated fats basically. तो वो saturated fats नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो थोड़ा कम रखे. polyunsaturated fats जो होते हैं मतलब जंक फूड जो है avoid वो it, हमारे avoid लिए इतना हेल्दी नहीं है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है. Yes, avoid it. Wonderful. Good doctor, thank you so much for guiding and giving us such a beautiful guidance to all of us. Now, finally, the last question to you, like as you are seeing this kind of patients, you have a lot of experience in this field. आप डेली के बेसिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आप डील करते होंगे, तो आप दर्शकों को कुछ इस बारे में भी बताइए कि लाइक कॉमन मिथ्स
surrounding into this back pain and its treatment because ये आपको शायद देखने को मिलता है, तो हम चाहेंगे दर्शकों को भी इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी मिले। एज सच तो मिथ्स तो इतने मतलब बैक पेन के बारे में ऐसे है नहीं, बट 1 or 2 आई वुड लाइक टू शेयर। वन इज देर आर पीपल हु कम टू मी एंड टेल मी कि हम तो एब्सोल्यूट ज़मीन पे सोते हैं, ठीक है ना, मतलब हार्ड। सो बैक को ऐसी हार्ड सरफेस की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। यू नीड अ प्रॉपर मैट्रेस। मैट्रेस सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। आप मैट्रेस पे जाके पहले लेटिए, ठीक है ना, और अपना हाथ जो है वो ये पीछे का जो अपना बैक का जो कर्व होता है कमर का, उसमें ऐसे नीचे से डाल दीजिए, मतलब मैट्रेस और पीठ के नीचे से अपना हाथ ऐसे पीछे डालिए और देखिए वो कंफर्टेबली अंदर जाना चाहिए ना। वो इतना लूज होना चाहिए कि इट शुड स्नगली फिट, इट शुड नॉट बी वेरी लूज, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके भी डालना नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज़बरदस्ती कर से डाल रहे हैं अंदर तो इसका मतलब मैट्रेस बहुत ही सॉफ्ट है, तो आपकी बैक वो मैट्रेस का शेप ले रही है नीचे से, मतलब वो सिंक हो रही है। और बहुत ही हार्ड होगा तो बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है। सो दिस इज़ द वे यू सिलेक्ट अ मैट्रेस। तो मैट्रेस इज़ रिक्वायर्ड ऐसे ज़मीन पे सोने से। एक्चुअली some people get benefit maybe primarily because they were sleeping on very soft mattresses probably, तो उनको शायद इफेक्ट थोड़ा हो जाता है, बट एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। बिना पिलो सोने से बेटर रहता है गर्दन। नहीं, अब वो हर एक का अलग अलग ऐसा सेट ना, नेक लेंथ वेरीज फॉर एवरीबडी। सो आप वो कैसे एंगल में सोते हैं और किस साइड में सोते हैं, सीधा सोते हैं, साइड में सोते हैं, उससे डिफरेंट फ़र्क पड़ता है काफ़ी। मैट्रेस का एक तो ये पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ I have to become skinny so that I get rid of back pain. That is also not true. Skinny people also have back pain. मतलब जो पतले होते हैं उनको भी बैक पेन हो सकता है। तो पॉइंट इज़ टू मेंटेन द करेक्ट BMI। ऐसा इतना हमें अपने आप को स्टार्व नहीं करना है कि हम ऐसे मतलब एकदम ही स्लिम टाइप हो जाए। हाँ, बैलेंस्ड, हाँ, वो एक है। थर्ड थिंग इज़ कि बिल्कुल भी वज़न नहीं उठाना है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। कैसा होता है कि आपकी अगर BMI 70 किलोस, मतलब जो नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए 70 किलोस है, तो आप अप टू 10% तक तो उठा ही सकते हो। बट वही प्रिकॉशन लेना है कि आपको बेंड करके फॉरवर्ड उठाना नहीं है, आपको नीज को बेंड करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, नीचे झुकना है और फिर ऐसे उठाना है ऊपर। सो दिस फ्यू थिंग्स दैट आई सी विच आर somehow prevalent somehow in the population। तो ठीक है, वी ट्राई टू टेल पेशेंट्स कि ऐसा नहीं है, इतना अपने आप को ऐसे एकदम रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज करो, हो जाता है ठीक नॉर्मली। So activity is very important. Yes. And most importantly, as you said, that correct type of exercise should be done. Absolutely. Right. Absolutely. We should not just like that, follow some. बहुत सारे आजकल होता है कि हम YouTube या कुछ भी देख के कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो मेरे प्रॉब्लम के लिए सही नहीं भी हो सकता है। Probably not. Correct. So better to go to a specialist or a trained person to understand my body, and accordingly we should follow. Absolutely. Right. Yes. Wonderful. Thank you so much, doctor, for your valuable time. Sure. This is really very eye-opening for all of us because, as you correctly said, a lot of people are suffering due to this back pain, especially the young population also. During this pandemic situation, we have seen everybody is working from home. The way of lifestyle, the way of working style has been changed a lot. लोग डेस्क में ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, कई बार झुक के काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को घर में शायद ऑफिस का सेटअप नहीं था, तो नेचुरली वो कॉम्प्रोमाइज किया है अपने फिजिकल पोस्चर के ऊपर। सो नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड करेक्ट आवर पोस्चर, वी शुड करेक्ट आवर फूड हैबिट्स, एंड वी शुड फॉलो आवर वेट, as well as if there is any concern, we should not hesitate to meet a right specialist. Correct. Thank you so much once again. Chronic pain is serious because the symptoms are strong enough to impact your health, mobility and quality of life. Back pain can be associated with specific activity as well, or indicating towards major health concern. So talk to your healthcare provider for ongoing pain to resolve the concern at the earliest. We are always available over phone, and you can also comment here for assistance. Thank you so much for watching our live show. Namaste.